Good morning, children. Last time we did till electronic arrangement. As I told you that it is done on the basis of Bohrs-Bury rule, and according to this rule, K shell can have 2 electrons, L can have 8, M can have 18, and N can have 32 electrons, right? Now in this they have shown the hydrogen atom. In the center we have one proton, and around in the orbit we have one electron, and it is the only element which does not have a neutron. Okay, now in this table they have shown you electronic configuration of first 20 elements. You people have done it in your 7th class also. This is just a revision. First they have written the symbols, then atomic mass, mass number, then the atomic number, right? And how to represent mass number is always written on the top and atomic number is written in the bottom. Subscript atomic number, superscript mass number, right? For hydrogen, number of protons is 1, electrons is 1, and neutron is 0. So this is the table not showing you the electronic configuration, but this is showing you number of electrons, protons, and neutrons, right? You know how to do it. Now in this, electronic configuration is always written on atomic number, or you can say on the number of electrons. ठीक है, जब भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम विच इज़ 4 and 2, तो किस पे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑलवेज ऑन दिस एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन मास नंबर. वाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कौन दे रहा है? एटॉमिक नंबर. देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज रिटन ऑन एटॉमिक नंबर. So you have to do this table. Next we have valence electrons. Valence electrons means the number of electrons which are present in the outermost shell of an atom. For example, if you write for hydrogen is this, its electronic configuration will be K1. ठीक है, it has only one shell and that is the only valence shell. Valence shell क्या होता है? Outermost shell. Okay, outermost shell of an atom is called the valence shell, right? So hydrogen has only one shell and that is the only outermost shell, and उसमें कितने electrons है? 1. So therefore 1 is the valence electrons, right? Now in this they have shown you the electronic configuration of the elements with their valence electrons. For hydrogen, atomic number is 1, therefore its electronic configuration is 1. Helium, atomic number 2, electronic configuration 2. Why they have written 2 here? Because K can accommodate how many? Maximum electrons 2. इससे कम भी कर सकता है, इस पर 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता, right? Lithium, atomic number 3 है. How to do write its electronic configuration? First हम K में कितने फिल कर दें? अब हमने 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है K, L, M and N में. वो कैसे करेंगे? K can accommodate how many electrons? 2, राइट? तो पहले हमने 2 लिख दिया. अब 2, 3 में से कितने बैलेंस रह गया? 1. तो वो कौन सा शेल में जाएगा? L में. ठीक है, L शेल जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है अकोमोडेट? 8 मैक्सिमम, राइट? मिनिमम जितने भी हों, 8 से कम जितने भी नंबर है कैन अकोमोडेट, बट नॉट मोर देन 8. और ये कितने कर सकता है? 18. और ये कितने कर सकता है? 32. और ये कितने कर सकता है? 2. right? Same way we will keep on writing the electronic. For example, if I take off oxygen, 8. अब 8 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है K, L, M and N में, राइट? अब 2 हमने कर दिए K में, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो कितने रह गए? 6. और 6 हमने किस में डाल दिए? L में, राइट? नाउ इफ आई टेक ऑफ सिलिकॉन, 14. 2 K में, 8 L में, कितने रह गए अब हमारे पास? 4. और ये 4 कहाँ जाएंगे? M में. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4. और इसका वैलेंस शेल कौन सा है? M, राइट? नाउ सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम एंड कैल्शियम. इनके 19 होता है पोटाशियम का, राइट? इसकी होएगी 2, 8 और 9. एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 2, 8 एंड 9. बट हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 2, 8, 8 एंड 1. क्यों? बिकॉज वी हैव अ रूल विच इज़ कॉल्ड द ऑक्टेट रूल. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एन एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल टू बी स्टेबल. ठीक है, अब पोटाशियम कैसे स्टेबल होएगा? ये अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 8.
ठीक है। जब पोटाशियम एटम है तो इसके आउटरमोस्ट शेल कौन सा हुआ, ये वाला N, राइट, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे स्टेबल करेगा अपने आप को, अभी एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। कंबाइन कैसे करते हैं, बाय ईदर लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ना अब ये क्या करेगा, पोटाशियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी एटम को दे देगा जिसको ज़रूरत होगी, और इसके आउटरमोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा अब, M, और इसके M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, राइट। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्टेबल अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। सेम वे फॉर कैल्शियम 20, राइट। अब नेक्स्ट है कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की होनी चाहिए 2, 8 एंड 10, ठीक है। बट हमने 10 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 8 एंड 2 ऐसे डिवाइड कर दिया। क्यों, बिकॉज जो एटम है वो स्टेबल नहीं है कैल्शियम का, ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसी अदर एटम को जो स्टेबल जो जिसको चाहिए होंगे, राइट। और फिर इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 8, एंड इट विल बिकम स्टेबल अकॉर्डिंग टू विच रूल, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, राइट। सो कैल्शियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 2, 8, 8 एंड 2, हम 10 को डिवाइड कर लेते हैं 8 और 2 में। सेम वे पोटाशियम के 9 को हम डिवाइड कर लेते हैं 8 और 1 में, ठीक है। हमने ऐसे डिवाइड करना है ताकि लास्ट में उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ओके। नाउ दे हैव शोन यू द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच यू हैव डन इन योर 7th क्लास ऑल्सो, होप यू कैन डू इट, राइट। एक सबसे पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद शेल्स बनाना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई डू फॉर हीलियम, सेंटर में वी हैव न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट में वी हैव 1 शेल, राइट। और वो शेल कौन सा होएगा, K शेल। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और सेंटर में विल राइट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके। कितने प्रोटॉन हैं उसमें, 2 प्रोटॉन्स, वी विल राइट 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ये लिखना इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड इन्होंने यहाँ पे ये जो शेल्स हैं ये डॉटेड बनाए हैं, यू कैन इवन शो विद द बोल्ड लाइन और विद द डॉटेड लाइन, वट एवर इज़ कम्फर्टेबल, बट द इलेक्ट्रॉन्स यू विल शो विद these circles, right. Now in this paragraph they have written that noble gases, they are inert, they are stable. Why they are stable, because their octet is complete, right. They are stable according to the octet rule, therefore they are called the noble gases. Whenever you will see the electronic configuration of noble gases, they will always have 8 electrons in their outermost shell, ठीक है, except for helium. Helium has 2 electrons in its outermost shell and it is stable according to the duplet rule. Now we have one more rule which is called duplet rule, and it is applicable for helium, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, इनके लिए, ठीक है। क्यों, बिकॉज इनके पास ओनली 2 शेल्स हैं एंड इनको स्टेबल होने के लिए इन देयर आउटरमोस्ट शेल दे रिक्वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेस्ट ऑन ऑल द एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल इज एप्लीकेबल, ओके। ओनली ऑन दीज एलिमेंट्स विच रूल इज एप्लीकेबल, डुप्लेट रूल, clear. So noble gases, they are chemically unreactive because they have stable electronic configuration as their valence shell is complete, ठीक है। Atoms of other element do not have stable electronic configuration as their valence shells are incomplete, clear. Attaining stable electronic configuration. Now we were talking of that it is stable, it is not stable, okay. Stability कैसे आती है एक atom में, either by losing electron or by sharing the electrons, okay. Now see, you people have done that potassium, let me explain you on this copy, okay. If we write K is an atom, okay, and if I write K positive, it is an ion. What is the difference between two? K atom is unstable and this is stable, okay. If I write the electronic configuration for K, it is 2, 8 and 1,
Okay, 2, 8 and 1, it has 1 electrons, it is in its outermost shell, right? तो ये stable नहीं है because according to octet rule कितने electrons होने चाहिए outermost shell में? 8. तो what it will do? It will lose its 1 electron, right? And it will, when potassium, कोई भी atom जब electron lose करता है, it always forms which ion? Positive ion, which is also called cation, right? और उसको दिखाते हैं ऐसे, potassium minus 1 electron is forming K positive ion, which is called cation. ठीक है. And now if I talk of chlorine atom, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 7, राइट? अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8, राइट? नाउ क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Cl-1. जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड, इट फॉर्म्स एनाइन. कौन सा आयन फॉर्म करता है? एनाइन, right? So an atom becomes stable by either losing electrons or by gaining electrons. जब लूज़ किया इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. क्यों? बिकॉज इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, पहले दोनों इक्वल थे, यहाँ पे लूज़ कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? मतलब पॉजिटिव वाली साइड हैवी होगी. ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. ना अब किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वाली साइड हैवी होगी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, राइट? दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर. So in this example they have shown how a potassium ion is formed, which I have already told you. This you can read, and this they have shown how a magnesium ion is formed. How magnesium is formed by losing 2 electrons and you will get Mg plus 2, right? Next is by gaining electrons. How a chloride ion is formed, this I have already told you, like this. Okay, and how oxide में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 and 6. इसको स्टेबल होने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड यू विल गेट O-2. क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? -2. मतलब 2 उसके इलेक्ट्रॉन्स हैवी हो गए. ठीक है, और इसने ये क्या बना दिया? एनाइन. इट विल फॉर्म एनाइन. दिस इज हाउ cation and anions are formed, right? Now next we have is valency. Valency, the number of valence electrons lost or gained by an atom in order to attain its stability is called its valency, right? What is valency? Number of electrons, valence electrons, and whenever there is loss or gain of electron, it is always of valence electrons. ठीक है, जब भी कोई एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है टू अटेन स्टेबिलिटी, वो क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी. फॉर एग्जांपल सोडियम एटम